Hello friends, welcome to the Gaurav Arya show. दोस्तों, you must have heard a lot of stuff going on in Australia. There's a lot of stuff going on in Canada, in London. ये खालिस्तान रेफरेंडम पहले 2020, 2022 पता नहीं कब का. इसके पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं. बहुत लंबी कहानियां हैं. खालिस्तान का मामला उभरा कैसे. और मुझे लगता है वो जो खालिस्तानी जो रेफरेंडम चाहते हैं उनको भी नहीं पता होगा खालिस्तान का मामला उभरा कैसे, इसकी रूट्स क्या हैं. Today we have a very special guest. We have Mr. GBS Sidhu, who spent more than a quarter of a century with India's external intelligence agency, the Research Analysis Wing. सिद्धू साहब जो हैं वो 1964 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं. पहले उन्होंने पुलिस ज्वाइन करी, उसके बाद रॉ उन्होंने ज्वाइन करी, और आज उन्हीं की कहानी उन्हीं की जबानी आप सुनिए. सर जय हिंद, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. Thank you very much. सर 1964 बैच यूपी कैडर, what were the initial days of the service, sir, जब आप यूपी में थे? Actually 64 batch ka I was the topper of the batch and I was awarded Prime Minister Nehru's baton and Home Minister's revolver. After spending 7 years in UP as ASP Kanpur, additional SP Agra, then SP Barabanki, I joined RNAW in February 1972. And within a few months, maybe 17, 18, 1.5 years, I was called by Mr. Kao, at that time the secretary of RNW, founder secretary, that Sidhu, I know that you are a young man, but we have a very important operation, a landmark operation, which we have to complete as per the direction of Mrs. Gandhi. And that operation was about the merger of Sikkim with India. So ये तो cowboys बोलते थे जो मिस्टर काउ के जो वो थे, उनका बड़ा फेमस एक टर्म था सर, cowboys. Cowboys of RNW, Raman has written a book on that also. Sir. And there was some sort of a statue or sort looking in the building, newly created building in CGO complex, where the cowboys thing was there, a man riding a horse. So that has not been, it's been removed now. Sir. But cowboys, we feel proud of being cowboys. Cowboys सर. तो सर वो दिन क्या थे? आपने बोला सिक्किम का क्या स्टेटस था और सिक्किम को भारत में मिलाने का? What was the plan to integrate Sikkim into India? Actually, Sikkim, as 566 states came to India's lot at the time of independence, and all were members of Chamber of Princes and all were members of the Constituent Assembly. But somehow Nehru thought that we should give some special status to Sikkim, and as a result of that, Sikkim became Protectorate of India through December 1950 treaty. So as a result of that, India got defense, finance, communication, all these things. The rest were handled by the Chogyal or Maharaja at that time. Later on, he became Chogyal in 1965. Chogyal means Dharam Raja, head of religion and head of the administration also. But somehow, Thondop, the Chogyal, started dreaming of becoming independent. From 1967 to 1972, he created hell for India, and he continued to pester Mrs. Gandhi that he wants independence only. अलग देश बनाना Like चाहते they, just like Bhutan, he always dreamt of that I should be treated like Bhutan. Sir. So, but you can't afford to give independence to a very strategic place like Sikkim. So Mrs. Gandhi then called Mr. Kao and Mr. Huxer, her principal secretary, in December 1972, and told Mr. Kao, can you do something about this? There was a letter in which Thondop described himself as His Majesty. His Majesty means independent, but he was not. He should have written His Excellency, whatever it is. So Mr. Kao said that please give us some time, I'll come back to you. He came back within 14 days and asked Mrs. Gandhi, please tell us what you want. She said you can go right up to independence, provided the local leadership agrees with it, the pro-democratic and pro-independent forces. Immediately after India's independence and the decision that we will give a protected status to Chogyal or Maharaja or Sikkim, Indian Foreign Service External Affairs Ministry started actually suppressing the pro-democratic and pro-freedom movements, so that Chogyal became strong and a stable. Sikkim is more in our interest than unstable democratic forces. So now my job at that time was to revive these pro-democratic and pro-independent forces. Then I made them join forces, all the different... तो सर काउ साहब ने आपको मिशन दिया? मिशन दिया कि ये आपको जो है आपने करना है, ये अब आपके पास है, इन स्टेजेस करना है हमने. कुछ इसको पहले इलेक्शन करवाना है, इलेक्शंस के बाद रेजोल्यूशन पास करानी है, इसके बाद रेजोल्यूशन के बाद पहले जो है
उसके बाद फिर फाइनल इंडिपेंडेंस तक जाएंगे। तो ये हमें जो है इसको जाने के बाद मैंने वहाँ जाके जो जितनी डिमोरलाइज फोर्सेस थी प्रो डेमोक्रेटिक, मेनली लेड बाई काजी लैंडबदोर जी, who was the head of the Sikkim National Congress at that time. तो फिर सर कब मिल गया ये भारत में सिक्किम? वो अप्रैल 1975 में पहले तो इलेक्शन करवाई, इलेक्शन में 32 में से 31 सीटें आई, उसके बाद रेजोल्यूशन पास किए, उसके बाद फिर जो है एसोसिएट स्टेट बनी 74 में, 75 में जाके 36 जो अमेंडमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की हुई उसके थ्रू अप्रैल 26 में भारत का 22वीं स्टेट बन गई। बट सर ये रॉ का जो हाथ है ये इतना वेल नोन, मतलब लोगों को पता है जो पढ़ते हैं इसके बारे में, पर ये इतिहास किसी को नहीं पता कि किस तरीके से कि RNAW गई और RNAW ने फिर ये पूरा करवा के इट मेड श्योर दैट सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सर ये किसी को नहीं पता था, ये जब तक मैंने किताब लिखी है अपनी सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी जो है 2000 ये आई 18 में। उसके बाद डिपार्टमेंट में भी RNW में भी बहुत लोगों को नहीं पता था, सिर्फ काओ साहब को पता था। काओ साहब ने मुझे 1988 में बुलाया भी था कि सिद्धू RNAW का रोल जो बांग्लादेश में तो बहुत सब जानते हैं, मुक्ति वाहिनी वगैरह हमने रेज करी, मगर सिक्किम के बारे में कोई भी नहीं जानता, मैं जानता हूँ या तुम या एक बैनर्जी साहब थे हमारे जॉइंट डायरेक्टर कैलकाटा के, वो गुजर गए। तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा था इसके ऊपर, सिक्किम के ऊपर, लिबरेशन ऑफ सिक्किम, वो मुझे देना चाहते थे 88 में। मैं अभी सर्विस में था, मैंने कहा साहब मैं शायद ना लिख पाऊँ, तो वो कागज़ जो है वो पेपर है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में पड़ा है और 2025 में खुलेगा, जिसमें लिखा था कैसे डिसीजन हुआ। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं खालिस्तान, जो आपकी किताब है सर द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और इस किताब में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं सर विच वर शॉकिंग टू मोस्ट ऑफ द इंडियंस, क्योंकि हमें तो नहीं पता था। मेरे सवाल सर आपसे सीधे हैं, क्योंकि अभी खालिस्तानी बहुत हल्ला भी कर रहे हैं, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, ये कर दो वो कर दो, तो काफ़ी वो लोग करते हैं। वी ऑल नो वेयर दे आर सपोर्टेड फ्रॉम सर, ISI सपोर्ट करती है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और ये खालिस्तान का मामला पैदा कब हुआ और कैसे पैदा हुआ सर? तो यहाँ मैं बताता हूँ कि सिक्किम की मर्जर के बाद मुझे भेजा गया कनाडा में, वहाँ इंडियन हाई कमीशन में मैं फर्स्ट सेक्रेटरी रहा सितंबर 76 से सितंबर 79 तक। तो मैं सब जगह से जितने भी कनाडा के बड़े बड़े शहर थे सब जगह गया, एक में 2 दफ़ा गया, बहुत लोगों को जानने लग गया, सिखों को खास करके, पंजाबियों को। मुझे पता लगा कि सारे कनाडा में सिर्फ 2 आदमी थे जो खालिस्तान की बात करते थे, और एक तो जो कुलदीप सिंह सोढी था वो तो प्रचार भी करता था, वो जो था जगजीत सिंह चौहान का आदमी था। सब जानते हैं कि जगजीत सिंह चौहान ISC की पे में था, और कुछ जो है रिपब्लिकन सेनेटर US के उसको जानते थे। और दूसरे थे उदय सिंह सडबरी, प्रोफेसर थे, बड़े रिलीजियस धार्मिक टाइप के आदमी थे, प्रोफेसर थे वो, मगर उनके दिमाग में आ गया कि शायद सिख जो हैं एक सेपरेट स्टेट में उनका अच्छा रहेगा, तो उनका और कोई जानते नहीं थे। ये कितनी बुक्कत थी कुलदीप सिंह सोढी की वहाँ पर। तो एक मार्च 1979 में सिख कॉन्फ्रेंस हुई टोरंटो में, मुझे भी बुलाया बोलने के लिए, कि मैं जब बोलने लगा तो उसमें वो थोड़ी देर में खड़ा हो गया। कुलदीप सिंह सोढी कहा कि मिस्टर सिंह, मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में GB सिंह नाम है, तो वो कहा मिस्टर सिंह जो है ये तो मुरारजी देसाई हिंदू गवर्नमेंट के आदमी हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं, ये बताएं कि सिखों के साथ पंजाब में क्या हो रहा है। वो इतना ही उसने कहा था, 4-5 यंग सिख जो उसके इर्द गिर्द थे हॉल में बैठे, वो उनको पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो ऐसी तो सिखों की, ऐसी तो खालिस्तान की बात थी, कोई नहीं जानता था। उसके देखिए मे भी जून 1979 में मेरे जॉइंट डायरेक्टर का एक चिट्ठी आई RNW से कि भाई तुम जो हमें गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, तो हमारा काम दूसरा है, उसको करो तुम। तो ये जब हुआ तो अगर RNAW में खालिस्तान वगैरह, तो गुरुद्वारा से सारी चीज़ें शुरू हुई, तो उस वक्त तो कुछ बात ही नहीं थी। खालिस्तान की बात लोग करते थे, लोग सोचते थे कि भिंडरांवाले को कांग्रेस ने क्यों उठाया, उस वक्त हो गए थे। उसको पैदा किसने करा भिंडरांवाले? मैं उसकी बात अभी करता हूँ। तो मैंने पैदा ये हुआ कि जब जेल से ये 77 में कांग्रेस हार गई नेशनल इलेक्शन और पंजाब में हार गई, तो उसके जैल सिंह चीफ मिनिस्टर हार गए और बादल की गवर्नमेंट अकाली और जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बन गई। जनता पार्टी इज ए प्रिकर्सर ऑफ BJP वगैरह। जी जी। तो जैल सिंह ने संजय को कहा कि हम इनके, संजय कौन सर? संजय गांधी जो हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको समझाया कि हम इनकी गवर्नमेंट को तोड़ सकते हैं अकालियों की और जनता पार्टी की, अगर हम ऐसा कोई आदमी एक संत खड़ा कर लें जो अकालियों की मॉडरेट पॉलिसीज़ को अटैक करे और उनको मजबूरन जो है, अकाली जो है वो जो रूरल इंटरेस्ट को करते थे और जनता पार्टी शहर के इंटरेस्ट को।
तो ये अगर रूरल एरियाज़ के बाकी चीज़ों को, सिखों के इश्यूज़ को खड़ा करने लगे तो उनके डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो इन्होंने, अब मैं तो ये कुलदीप नायर ने अपनी किताब लिखा है बियॉन्ड द लाइन्स ऑटोबायोग्राफी में, कि मैंने एक दफ़ा कमलनाथ से पूछा कि भिंडरांवाले के बारे में बतलाओ, कहता साहब हमने डिसीजन ले लिया था कि 2 संतों की इंटरव्यू करेंगे, उसमें से ये जो भिंडरांवाले बहुत फिट निकले हमें कि ये आदमी जो है हमारा काम कर सकता है, अकालियों को ऊपर प्रेशर डालेगा। तो ये भी कहा उसने, कमलनाथ ने, कि हम कभी कभी पैसा भी भेज देते थे। मगर ये जो है 80 की जो बाद में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई जनवरी में, उस वक्त तक बहुत कुछ कर नहीं पाया था भिंडरांवाले। और बीच में एक अपने बीजी देशमुख थे उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी होम, तो वो 79 में गए पंजाब में बाई रोड। तो सारा कुछ लोगों को मिलने के बाद अपने जॉइंट सेक्रेटरी को कहा आके कि पंजाब इज़ ए हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन इंडिया। तो उसके जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा साहब कि ये जो भिंडरांवाले को कांग्रेस खड़ी कर रही है ये बहुत इनको तंग करेगा बाद में। तो कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ भिंडरांवाले ने 3 कांग्रेस के एमपीज़ के इलेक्शन में प्रचार किया, और सिर्फ जो एसजीपीसी के इलेक्शन उस साल हुई 140 में से सिर्फ 4 आदमी इसके जीत पाए। तो मगर अब जब यानी कि उस समय भिंडरांवाले की पंजाब पॉलिटिक्स में इतनी पकड़ नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। वो मैंने जो किताब लिखी है, एक ऑपरेशन टाइप, RNW के ऑपरेशन टाइप लिखा है हमने। जो पंजाब सेंट्रिक ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन 1 का नाम दिया है। जो नेशनल लेवल का ऑपरेशन जो जनवरी 1980 में सोचा गया उसको ऑपरेशन 2 किया है। तो ये जब जनवरी में जीत गए इलेक्शन, संजय ने अपनी मदर को कहा, मिसेस गांधी को, कि देखो हम जो 1971 की इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी पे जीते थे, गरीबी हटाओ स्लोगन के बाद, जेपी के मूवमेंट के बाद हमें 77 में बहुत बुरी तरीका हार का सामना देखना पड़ा। अब हम सोचते हैं कि ऐसी दोबारा ना सिचुएशन आ जाए, तो 1985 की जो इलेक्शन ड्यू है जनवरी में, उसके बारे में अभी तैयारी कर लो। और तैयारी ये करो कि भिंडरांवाले खालिस्तान इशू को और चढ़ाओ, और भिंडरांवाले से ऐसा टेरर पैदा करो हिंदुओं के माइंड में कि उनकी जान का खतरा हो जाए, और खालिस्तान का मुद्दा पैदा करो ताकि लोगों को, हिंदुस्तानियों को ये लगे, खास करके हिंदुओं को, कि देश के टुकड़े होने वाले हैं। सर आप ये कह रहे हैं सर कि चुनाव था, ये खालिस्तान का मुद्दा, भिंडरांवाले की पैदाइश, खून खराबा, हजारों सिखों की मौत, हिंदुओं की मौत, पाकिस्तानी ISI का इंटरफियरेंस, पूरे पंजाब में आग लगना, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होना, ऑपरेशन ब्लू स्टार होना, ये सब एक चुनाव जीतने के लिए शुरू करवाया था। ये शुरू में प्लान ही ये थी कि ऑपरेशन, देखो हर ऑपरेशन का एक प्लान होती है, उसके बाद कैसा मोटिव क्या है, उसके बाद आदमी कौन है करने वाले। तो मोटिव तो ये था कि इलेक्शन जीतनी है हमने, प्लान ये है कि भिंडरांवाले खालिस्तान को इशू को खड़ा करना है, और आदमी जो रन करने थे वो मैंने लिखा है कि 1 अकबर रोड का नाम दिया उसको। 1 अकबर रोड वाज द रेजिडेंशियल ऑफिस ऑफ मिसेस गांधी। ये जो लोग थे, पहले वाले में तो सिर्फ संजय गांधी, जैल सिंह, कमलनाथ एंड मिसेस गांधी ऑपरेशन 1 में। दूसरे ऑपरेशन में संजय मर गए जब जून 80 में, उसके बाद ये राजीव गांधी आ गए और अरुण नेहरू, ML फोतेदार, कमलनाथ तो थे ही, वो तो साथ चलते थे, और बाद में जो है आपके अरुण सिंह जो कपूरथला फैमिली के, तो ये रन करते थे ऑपरेशन। वहाँ से हर चीज़ यहीं से डिसाइड होती थी। और पंजाब में जो है ऐसी पैदा सिचुएशन करने के लिए जो है मैंने लिखा है कि ये जो उन्होंने कहा कि अब 4 साल तक कैसे निकालेंगे, ये डिसीजन तो हो गया, और इसका सोल्यूशन जो खड़ा करेंगे वो इलेक्शन से 5-6 महीने पहले करेंगे, ताकि ये हो जाए हिंदुओं के मन में और हिंदू बाकी लोगों को कि देश को बचा लिया, हिंदुओं को बचा लिया, और वो इस चीज़ में ग्रेटफुल होके कांग्रेस को वोट दे दें और हम जीत जाए। So this is very shocking what you're telling. मैं लिखा है किताब में, तो मैं कोई गलत थोड़ा लिखा, नहीं, किसी ने अभी तक कंट्राडिक्ट नहीं किया मुझे। नहीं सर, मैंने पढ़ा, लेकिन मैं ये जब भी मैं पढ़ता हूं ना सर, वो whenever I read those lines, I'm always shocked that कि इतने लोग मर गए, पंजाब में कितने लोगों का तो पता ही नहीं लगा सर। 35,000 पीपल। हाँ सर, नहीं सर, वो जो गायब हो गए थे लोग सर, उनकी तो पता ही नहीं लगा कहाँ हैं कहाँ नहीं गए, लोग डिसअपियर हो गए सर। इतना मारकाट हुई पंजाब में, इतना खून खराबा हुआ कि 85 का किसी तरीके से चुनाव जीतना है, हजारों बंदे मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, बट वी शुड विन द इलेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, उस समय सर रॉ का क्या किरदार था? रॉ ने उस समय RNAW क्या कर रही थी जब पंजाब में टेररिज्म पीक पे था? क्या कभी किसी ने बोला
या आपने या किसी सीनियर अफसर ने मिसेस इंदिरा गांधी को या कांग्रेस में जो ये कमलनाथ साहब थे, फोटेदार साहब थे, जितने भी लोग थे, क्या कभी किसी को बोला कि ये हाथ से मामला निकल जाएगा? क्योंकि ये चीजें हाथ से निकलती हैं सर। आखिर इंदिरा जी की जान भी तो इसी मामले ने ली, तो हाथ से निकलता मामला। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई खालिस्तान का मुद्दा बाहरी मुल्कों में होता तो RNAW में कोई डिवीज़न, कोई ब्रांच तो होती। पहली दफ़ा 1980 दिसंबर में एक खालिस्तान के बारे में ब्रांच खड़ी की बी रामन के अंडर, पहली दफ़ा। ये तब की कि जब डिसीजन हो गया जनवरी में कि खालिस्तान का मुद्दा पैदा करेंगे, तो बाहर क्या हो रहा है तो RNW को तो पता लगना चाहिए। कोई ब्रांच है नहीं, पता कौन करेगा? पहला ये हो गया। और जनवरी फरवरी 81 में मैं बहुत क्रूशल पोजीशन में था। जब कनाडा से वापस आया तो साउथ ब्लॉक में RNW का हेडक्वार्टर था। थोड़े से कमरे होते थे, बाकी स्प्रेड ओवर था अलग अलग जगह पे RNW दिल्ली में। तो 5-6 अफसर वहाँ होते थे। तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट जॉब में, एक तो बाहर वाले जितने RNW स्टेशन को मैनेज करता था, और जितने लेज़ा फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से बाद में मुझे वो भी मिल गए। तो जनवरी फरवरी में संटूक तो उस वक्त डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि सिद्धू ऐसा करो कि प्रपोजल बनाओ, 7 स्टेशन नए बनाने हैं, जिसमें वेस्ट यूरोप में कुछ होंगे, कुछ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और अमेरिका US में। तो उसमें ऐसा लिखो कि खालिस्तान की मुद्दा खड़ा होने वाला है और बहुत इसको ज़ोर पकड़ने वाला है। इससे पहले कि ये ज़ोर पकड़ जाए, हम अपने आदमी भेजना चाहते हैं। तो मैंने सोचा, बनाया, क्योंकि मैं जानता था कुछ खालिस्तानी आदमी, 3-4 आदमी थे उससे पहले जो खालिस्तान की बात करते थे। एक तो कपूर सिंह ICS डिसमिस्ड ऑफिसर, जो कहते हैं कि जिन्होंने कि ये आपका अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन बनाया, और ये एक डॉक्टर सोहन सिंह थे उस वक़्त डायरेक्टर जनरल पब्लिक जो इतने हेल्थ सर्विसेज, एक सिमरनजीत सिंह मान, एक आपका जो है चौहान जगजीत सिंह, और इसके अलावा तो था ही नहीं। ये अपने इनके कोई ना फॉलोइंग होती थी, बात करते थे, 4-5 आदमी हर आदमी के पीछे लग जाते थे। तो मैंने बना के भेज दी। मैंने कहा कि एमईए तो अब एक पोस्ट असिस्टेंट की नहीं देती हमें, ये कहाँ सेंक्शन होंगे? हमें ताज्जुब हुआ कि 1-1.5 महीने में आ गई सेंक्शन सब स्टेशंस की। हम बड़े खुश कि मैंने तो बहुत काम बड़ा कर लिया। तो उसके बाद फिर मिडिल ऑफ 81 में मुझे जब नई बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो गए CGO कम्प्लेक्स में, संटूक साहब ने कहा कि सिद्धू, डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को तुम ये बतलाओ कि खालिस्तान चीज़ क्या है। अभी देखो 81 में आ गए, RNW के अफसरों को ये समझा रहा हूँ कि खालिस्तान का मुद्दा क्या है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करनी चाहिए। सर एक बात बताइए सर, आपने ब्रीफ करा रॉ के ऑफिसर्स को कि खालिस्तान का मुद्दा ये, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जो देखिए, जब ये मुद्दा तो जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल ज़िया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। मैं उसके पहले जो पाकिस्तान का इस पंजाब में जब ये बेआदमी फैली आदमी, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑपरेशन करता था इंटेलिजेंस ऑपरेटर, जहाँ कोई स्मगलिंग कर लेता था। तो ऐसा कुछ नहीं था। मगर मैंने ये मेरा किताब में भी लिखा है, मैं अपने दोस्तों से भी कहता है कि अगर पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। अब इंडिया को 2 जगह पे अपने संभालना पड़ा। इधर पंजाब में देख के उन्होंने कश्मीर में ज़्यादा कर दिया 1990 के बाद। सर 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की मैं ये बात समझता हूँ सर, मैं तो स्कूल में था उस वक्त, पर मैं एक बात ये समझता हूँ सर फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव कि इसके नॉन काइनेटिक एंगल भी हो सकते थे। अगर स्वर्ण मंदिर के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर टेररिस्ट थे, भिंडरावाला थे, वहां पे कई 100 लोगों की फौज भी थी, जनरल शाबेग सिंह भी थे वहां पे, देयर कुड हैव बीन अदर मीन्स रादर देन सेंडिंग आर्मर्ड व्हीकल्स इनसाइड दैट एरिया। आप इसको स्मार्टली भी तो मैनेज कर सकते हैं सर। आंसर टू एवरी क्वेश्चन इज नॉट काइनेटिक सर, कि ठोक दो, मार दो, दैट इज नॉट द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। पॉइजन गैस हो सकती है सर, कई और किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं। वी आर ग्रेट फ्रेंड्स विद द रशियंस, वी कुड हैव आस्क्ड द रशियंस ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था विदाउट हार्मिंग द स्ट्रक्चर? बंदे मरे सर, दैट्स ऑल राइट, वो तो ऑपरेशन में मरते हैं। जो स्ट्रक्चर है स्वर्ण मंदिर का, मेरा कंसर्न स्ट्रक्चर है, मेरे कंसर्न लोग नहीं है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई, मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग, जो जनरल वैद्या के साथ। जनरल वैद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम जो है स्वर्ण गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। मगर 29 तारीख को जनरल सुंदर जी ने वैद्या को कहा कि साहब ये तो पंजाब के लोग जो हैं हमें घेर लेंगे अगर ज़्यादा देर तक चला, तो वहाँ तो हमें कुछ सर्जिकल टाइप स्ट्राइक करेंगे।
और उन्होंने कहा 29 को फिर मीटिंग मांगी वैद्या ने मिसेस गांधी को। मिसेस गांधी को कहा साहब हम गए और आए, किसी को पता थोड़ा लगना है। और ये जो है देखिए, जो ये सॉल्यूशन जो है पहले से ही था, मैंने कहा था। जब देखिए 1983 में मैं यूएसए से जब वापस आया, मुझे पता लगा कि ये मुझे यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने मिस्टर सक्सेना आ गए थे उस वक्त सेक्रेटरी डायरेक्टर RNW, मैंने उन्हें को कहा साहब मुझे इन चीज़ों छोड़िए, अगले साल से पहले बहुत बड़ा धमाका पड़ने वाला है और उस वक्त मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ। मुझे कहे वेल डन, गो टू बैंकॉक एज हेड ऑफ RNW। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो यही रहूँगा। तो ये सॉल्यूशन हो सकता था। 4 दफ़ा जो पंजाब का सॉल्यूशन, पहली दफ़ा तो सरदार स्वर्ण सिंह ने नवंबर 4 को 1982 को एक इनकालियों से बुला के कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग मिसेस गांधी से पूछ के एक स्टेटमेंट पूरी कर ली, जो नेक्स्ट डे होम मिनिस्टर ने पढ़नी थी पार्लियामेंट में, और अकाली मान गए थे कि अगर ये स्टेटमेंट हो जाती है तो हम वापस ले लेंगे। मगर पहले मिसेस गांधी ने दिन में अप्रूव कर दी, रात को उसको चेंज कर दिया, बड़ी हार्ड लाइन स्टेटमेंट। और दूसरी चीज़ जो है, ये जब अठवाल मरे थे 25 अप्रैल 1983 में, DIG जलंधर है जो भिंडरांवाले के आदमी ने मार दिया था, उसकी बॉडी 2 घंटे वहाँ पड़ी रही गोल्डन टेम्पल के अंदर जा बाहर। तो दरबारा सिंह ने कहा चीफ मिनिस्टर ने इंडिया अपने सेंटर को कि देखिए भिंडरांवाले गुरु नानक निवास में है, वो तो गोल्डन टेम्पल में भी नहीं है, सराय में है, कहो तो मैं पकड़ के उसको पकड़ने नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे ऐसा सोल्यूशन। तीसरा जो बहुत इन्हीं का बंदा था, तो इन्हीं का मतलब जो मैंने पढ़ा था है कि अगर उसको पकड़ लेते तो फिर कहाँ इलेक्शन, फिर तो दिखाने की चीज़ थी ही नहीं। अल्टीमेटली वो उन्होंने कोई गोल्ड जो ब्लू स्टार टाइप ऑपरेशन करना ही था। और एक दफ़ा अप्रैल 1984 में एक ऑपरेशन सनडाउन जो था, जो RNW काउ साहब के कहने के ऊपर हुआ था, तो उसको करना था कि भिंडरांवाला जब लंगर रूफ के ऊपर उस वक्त चले गए थे अकाल तख्त में वो, तो उस वहाँ से SFF कमांडो के थ्रू 2 हेलीकॉप्टरों के, जैसे ये पकड़ा उसामा बिन लादेन का किया था ना, उस वक्त वहाँ उसको पकड़ के ले जाते। मगर मिसेस गांधी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि बड़ी कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। कहाँ होनी थी, 2 महीने में देखिए ब्लू स्टार कैसे हुआ। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे, और कमांडोज ने सब नक्शा दे दिया था। हमारे एक आदमी को पहले भेजा वहाँ, हर चीज़ के इतने आदमी हैं, इतनी गन पोजीशंस हैं। और COFF ने कहा जनरल ब्राड को कि हम पीछे से ये अकाल तख्त में सुराख करके स्टन ग्रेनेड फेंक देंगे, सब बेहोश हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो ब्राड ने कहा साहब हम वी कांट अफोर्ड टू डैमेज अकाल तख्त। हुआ देखिए, और कमांडोज को सामने से भेज दिया, और पैरा 1 पैरा के और SFF के एलीट कमांडोज, और सब सिटिंग डक की तरह मार दिए उन्होंने। तो 1 पैरा सर, 1 पैरा ने ऑपरेशन करा सर, ये 1 पैरा और SFF दोनों के SFF दोनों सामने से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सामने से बढ़ा दिए उसको, और उन्होंने मार दिया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अंदर बैठे थे जनरल शाह, जब शाह सभी गन पोजीशन के अंदर थे उसके, वो तो 71 के थे, उनको पीछे क्यों नहीं तोड़ के उसके पकड़ा गया, उसको पकड़ लेते। अब जनता पकड़ना नहीं चाहते थे। इस दफ़ा जो है, इस वक्त भिंडरांवाले को जिंदा पकड़ना बहुत, वो बोल देता कि मैं तो इनके कारण कर रहा हूँ। कुछ लोग तो अभी भी समझते हैं। जब जिस दिन मरे हैं वो भिंडरांवाले 7 जून को, मैं अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ बंगला साहब गुरुद्वारे में गया, वहाँ पोस्टर तरह तरह के होते थे। एक पोस्टर में लिखा था पंजाबी में कि सिंह साहब अमरीक सिंह एंड थारा सिंह, इनके अमरीक सिंह गुरु भाई था, थारा सिंह नंबर 2 थे, कि उनको तसीहे दे के मारा गया है। अब हर सिख का फ़र्ज़ बनता है कि इस बड़ी डेरोगेटरी टर्म थी कि बामनी को मारना है। तो मैंने अगले दिन आके बतलाया मिस्टर सक्सेना को कि ये पढ़ा है और मैं जानता हूँ सिख हिस्ट्री, ये 6 महीने के अंदर मिसेस गांधी मारी जाएगी, आप बचाने की कोशिश करें। तो उन्होंने बड़ी चीज़ की इम्पोर्टेंट कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हो जाएगा। इसका मतलब ये पहले से ही प्लान थी। ये रॉ को पहले से पता था, मीटिंग में पता था, मीटिंग होती थी रोज़। आपने पहले घंटी बजा दी थी। मैंने कहा, मैंने 21 तारीख अक्टूबर को मिसेस गांधी के मरने के कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, छुट्टी थी संडे की, मैं बच्चों के साथ अपनी गाड़ी से कनॉट प्लेस से घर आ रहा था। जब मैंने 1 अकबर रोड से जमखाना की तरफ मुड़ा तो वहाँ एक सिख और एक हिंदू खड़ा था राइफल ले, स्टैंड गन लेके। मैंने कहा कि ये किसने बुला लिया, दिस इज़ द श्योरेस्ट एंड ईजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग मिसेस गांधी असैसिनेटेड। और अगले दिन मैंने नोट लिखा जाके सवेरे हाथ से, उसमें लिखा कि इनको एक 4th विद रिमूव करिए, टुमारो विल बी टू लेट, एंड आल्सो इंक्वायर कि इनको क्यों, किसने बुलाया। मैं अपनी सेक्रेटरी को कहा सब लिफाफा बनाओ टू बी एड्रेस्ड बाय ओपन। तो मैंने सोचा कि फ़र्ज़ करिए आज ही मर जाती है तो मुझे तो कंस्पिरेसी में मुझे पकड़ लेंगे कि तुम्हें पता था ये। तो मैंने वो कागज़ श्रेड कर दिया नहीं।
जी। जिसने बुलाए वो काओ साहब का पेपर है मिसेस गांधी के असैसिनेशन के ऊपर भी, जी। वहाँ पड़ा है नेहरू मेमोरियल में, उन्होंने लिखा होगा क्या कारण है क्या नहीं है। आखिरी सवाल सर, मेरा आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी ने भिंडरावाले को पैदा करा, आपने फोटेदार साहब का नाम लिया, आपने कमलनाथ जी का नाम लिया और कई लोगों का नाम लिया, और आपने ये भी बोला कि कांग्रेस पार्टी ने पैसे दिए थे भिंडरावाले को, पेमेंट भी गई थी उसको, ये आपने बोला, अपने ही बंदे को मारा क्यों कांग्रेस ने सर? अब उसका फायदा उठाना था, वो फायदा ले लिया और मार दिया, फिर वो डिस्पोजेबल हो गया सर। डिस्पोजेबल। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ का मुद्दे का फ़ायदा उठा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, और मैंने किताब में यही लिखा है कि ये लोगों ने उसी तरीके से इसको करना है जैसे कि तिब्बत इशू को यूज़ किया था इन्होंने। तिब्बत इशू को बैक बर्नर में रख दिया, जबकि चाइना से रिलेशन शुरू हो गए, अब सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन करनी थी। अब जिस दिन 1990 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ दे दिया, फिर फ्रंट बर्नर में ले आए। अब चाहिए कि बाहर सोल्यूशन कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ यूज़ करेंगे खालिस्तान का मुद्दा, आपसे इसके कंसेशन लेंगे। अब इंडिया की ज़रूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए, तो इसलिए जो सोल्यूशन है इंडिया में है, एक ट्रूथ कमीशन या रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठाएं जिसमें सबको पता लगे कि क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या डैमेज हुई। अभी तो 2-3 आदमी ज़िंदा हैं, सभी जो जिनको जानते हैं, कमलनाथ भी ज़िंदा है, अरुण सिंह भी ज़िंदा है, हो सकते हैं इनके चेंज ऑफ हार्ट हो जाए, एमनेस्टी दे दें कि अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप आइए बतलाइए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सच तो सामने आए, सच तो सामने पता लगे लोगों को। अब जो जितने मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो सारे खालिस्तान की बातें करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाई हार्ड प्रो इंडियन, सिख जो हैं, मगर उनके हाथ में कुछ तो हो, वो कहते हैं देखो तो हमें मिला क्या। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ज्वाइन करा और आंखें खोल दी। हमारी ऑडियंस जब ये सुनेगी सर तो कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है बात कि इतना बड़ा इतिहास का हिस्सा हुआ है। ये एक सच्चाई है, बहुत ट्रूथ बिटर होता है, बिटर है सर, बहुत कड़वा है, लेकिन होश फाख्ता करने वाला सच है। दोस्तों, आपने सुना जीबीएस सिद्धू साहब ने क्या बोला कि चुनाव जीतने के लिए 1985 में एक चुनाव था जिसको जीतना था, और सिद्धू साहब ये कहते हैं कि उस चुनाव को जीतने के लिए ये पूरा प्रोग्राम रचाया गया, भिंडरावाले जैसे बंदे को पैदा करा गया, हजारों लोग मरे, मरवाया गया उनको कि हम एक चुनाव जीते, और किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और किस तरीके से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को पता लगा कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है। और वहां पे प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट्स हैं नेहरू मेमोरियल में, जो म्यूजियम है, वहां पे ये सब दस्तावेज रेडी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और कुछ हैं जो कुछ सालों में, 2-3 सालों में डीक्लासिफाई भी होने वाले हैं, तब आप और उनको आगे देख सकते हैं। द गौरव आर्या शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलूंगा एक और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड।